السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ چلیے چلتے ہیں ناولٹ کی جانب۔ دیدہ و دل سیراب ہوئے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آسیہ رزاقی نے۔ اس موٹی بھبو میں کیا دیکھا تم نے آپا؟ ہائے، میرے شہزادے بھائی کے نصیب پھوٹ گئے۔ یہ کیا کر دیا؟ کب کا بدلہ لیا ہے تم نے ہم سے؟ سارے ارمان اور خوشی پر اوس ڈال دی۔ ارے آپا کو چھوڑو، اماں بھی تو دیکھنے گئی تھیں۔ تعریفیں، اف میرے خدا، کسی نے یہ نہ بتایا کہ موصوفہ گوشت کا تودا ہے۔ رنگ روپ تو بہت ہے، حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی ہیں۔ برتنے پر ہی جوہر کھلیں گے۔ بس ذرا خوف خدا کرو آپا، اس ہاتھی کے بچے کو کوئی ذرا کہہ سکتا ہے؟ میرا بیچارہ بھائی تو اس کے بوجھ سے پچک جائے گا۔ ہڈیوں کی خیر مناؤ، آخر اماں کو کیا نظر آیا؟ میں کہتی ہوں اپنا قریب کی نظر کا چشمہ لے جانا بھول گئی تھی کیا؟ حسب توقع، مگر پہاڑ تو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ہائے، کیا کہے گی میری ساس؟ یہ چیز لائے ہو تم لوگ؟ اور میری ساس مجھے کچا ہی چبا جائے گی کہ کیا حور پری لانے نکلے اور لے آئی دیونی۔ اب کیا منہ لے کر جاؤں ان کے سامنے؟ میں نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا آپا کو بھائی کی پسند کا علم ہے، ان کی نظر میں معمولی لڑکی تو سماتی ہی نہیں، صورت اور سیرت ٹھونک بجا کر تول ناپ کر لائیں گی، کمی کسی چیز میں نہ ہو۔ آخر ایک ہی بہو آنی ہے تو ہر فن مولا ہر گن پوری ہوگی، مگر لگتا ہے کہ ایک ہی بہو کا خیال غلط ہے۔ یقیناً منہ بنا کر کہا گیا۔ یہ اس کی نندوں کے ارشادات تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی، انہیں ذرا بھی خیال نہ تھا کہ وہ ان کی توہین آمیز گفتگو سے کس قدر آزردہ دل برداشتہ ہوگی۔ چھوٹی دونوں چندہ اور تارا شادی میں شریک نہ تھیں، ایک تو پورے دنوں سے تھی، دوسری 4 دن پہلے بیٹے کو جنم دے کر سفر سے لاچار۔ بڑی بہن نے ہی پسند کیا تھا، وہی پیش تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شادی سے پہلے چھوٹی بہنیں آ ہی نہیں سکیں۔ ایک کی ساس بیمار ہو گئیں اور دوسری کے سسر فوت ہو گئے۔ لڑکی دیکھنے کی حسرت ہی رہ گئی دل میں، بیچاریاں۔ نکاح تو بارات آنے کے کچھ دیر بعد ہی ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے کھلاتے دوپہر ہو گئی۔ بڑی بہن راہیلہ کے میاں کی سوزوکی پک اپ پر بارات گئی تھی۔ واپسی ٹرین سے متوقع تھی، خیال تھا کہ سوزوکی میں جہیز آ جائے گا۔ گاؤں سے بارات مختصر ہی گئی تھی، یعنی بڑی آپا، ان کے شوہر اور والدہ صاحبہ، بڑی آپا کے 2 بچے، مگر شہر سے کافی لوگ شریک ہو گئے، جن میں زیادہ تر تو اس کی بڑی بھابھی کے رشتہ دار تھے۔ اصل میں بڑی آپا کے شوہر اس کی بڑی بھابھی کے ماموں ہوتے تھے، اس لیے بارات میں تو ان کا پورا کنبہ تھا۔ دولہا کے چند عزیز تھے، مگر بڑی بھابھی کے والدین بہن بھائی زیادہ ہی پرجوش اور پیش تھے۔ جہیز تو بہت مختصر تھا، اس لیے واپسی بھی پک اپ پر ہی ہوئی۔ پیچھے جہیز کا سامان، اس کی ساس، نند اور بیٹا، اور اگلی سیٹ پر وہ نند کی بیٹی کے ہمراہ۔ نندوئی گاڑی چلا رہے تھے، وہ بڑی بھابھی کے ماموں تھے۔ یہ بات بڑی بھابھی نے کئی بار اسے جتائی تھی، یہ میرے ماموں ممانی ہیں، ان کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، کوئی شکایت نہ سنوں میں۔ اگلی سیٹ خاصی بے آرام تھی، اوپر سے نند کی بیٹی اس پر لدی پڑ رہی تھی، مارے لاڈ کے گلے میں باہیں ڈالے دم گھونٹے دے رہی تھی۔ راستے میں رک کر ایک جگہ چائے پی گئی اور پھر گاڑی نے گاؤں کا رستہ پکڑا۔ اسے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ اس کی سسرال کتنی دور ہے، کہاں ہے، بس اس کے لیے تو یہ ایک دلچسپ خبر یہ تھی کہ دولہا دبئی میں ملازم ہے، فون پر نکاح ہوگا۔ وہ یوں بھی ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنے کی عادی تھی، کوئی بات دل پر لینے کی قائل نہ تھی، خوش رہتی، سدا خوش۔
जब उसे शादी की खबर मिली, मारे मुसर्रत के दिल नाच उठा। जिस्म तो इस काबिल ना था, वरना शायद वो अपनी शादी पर रक्स करती। उसे शादी का बहुत शौक था। किसी की शादी होती, जोश व खरोश उसके हिस्से में आता। चारों भाइयों की शादी में उसने दुल्हनों के उरूसी जोड़े के हम पल्ला कपड़े बनवाए। गोटे के दुपट्टे में चेहरा छुपा छुपा कर यूं चलती जैसे ससुराल में नई दुल्हन सहज सहज कर कदम उठाती है। लोग उसको देखकर हंसते, वो अनजान बन जाती। वो तो अपने मोटापे से कभी घबराई ही नहीं। पता नहीं लोगों को क्या दुख था, जिसे देखो वही उसे मोटी मोटी कहकर पुकारता, जैसे यही उसका नाम हो। वो उस नाम से बेजार हो गई। कभी कभी उसे अरमान आता कि लोग उसके नाम से उसे पुकारें। रूहाना, रूहाना, कितना प्यारा नाम था उसका। बरसों से वो उस नाम से ना आशना थी। जब बड़ी भाभी के मामू मोमानी उनके घर आए तो भाभी ने ताकीद की, उन लोगों की बहुत खातिर मदारत करनी है, कभी बरसों में तो आते हैं पहली बार। उसने खूब मज़े मज़े की डिशें तैयार की। खाना पकाने में तो वो लासानी थी और हर काम उसका लाजवाब होता। भाइयों के बच्चे इधर उधर कूड़ा फैलाते, वो फ़ौरन समेटती, सफाई करती। घर की हर चीज़ आईने की तरह चमकती। सिलाई में भी माहिर थी, अक्सर भाइयों के कपड़े वही सीती। और कौन सा काम था जो वो जानती ना थी। उसमें खुदादाद सलाहियत थी जिसका भरपूर इजहार होता। अपनी मोमानी से बड़ी भाभी उसकी इस कदर तारीफ़ें कर रही थी कि वो खासी मुतासिर और मरूब हुई और उनकी नज़रें उसके वजूद पर जम कर रह गईं। बड़ी खिदमत गुजार, अताअत च्वार है, फर्मा बरदार। भाभी जोश में आकर बढ़ बढ़ कर बोल रही थी और उनकी मोमानी हैरत से कहती, अच्छा, हर काम और ख़िदमत भी। फिर ठंडे मिजाज की, वाह, ये तो कमाल की बात है। फिर तो यूं कहो कि हर फन मौला। दर्जी की बचत, बावर्ची की बचत, धोबी की बचत, यानी सरासर फ़ायदा। उन्होंने एक बार भी उसके भारी जिस्म पर एतराज़ न किया। वो उसे बहुत अच्छी लगी। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपनी वालदा के हमरा आईं। दिन भर रहकर चली गईं और फिर सुना कि उन्होंने, यानी वालदा ने, अपने लाइक फाइक बेटे के लिए रूहाना का रिश्ता मांगा है। वो दुबई में था और काबिले रश्क आदमी था। उसका गांव में अपना घर था, थोड़ी सी ज़मीन भी थी। उसने सुना तो दांतों तले ज़बान दबा ली। अरे, आज तक तो किसी ने उसका रिश्ता ना मांगा था। फिर भाइयों ने बाहम मशवरा करके इकरार कर लिया और मोहल्ले भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जोक दर जोक उनके घर आने लगे। सुना है मोटी की शादी हो रही है। अरे, क्या वाकई मोटू का ब्याह हो रहा है? कौन लोग हैं वो जो इस भंबो को ब्याह कर ले जा रहे हैं? सरगोशी में पूछा गया। अरे, कमाल है, इसका रिश्ता भी तय हो गया। समझो फिर तो कोई भी लड़की गंवारी नहीं रहेगी। लड़कियां उसकी तरफ इशारा करके हंसती। मोटी दुल्हन बनके कैसे लगेगी? दूल्हा गोद में लेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। ही। कहीं दबकर मर ही ना जाए। अरे नहीं, बेचारी को बेवा तो ना करो। लगता है सवारी के लिए हाथी लाएगा। कार तो इसके बोझ से पिचक जाएगी। भाई, अब क्या मोटी औरतें हाथियों पर सवारी करती हैं? इससे भी ज़्यादा बोझल खवातीन कारों में बैठा करती हैं। मोटी औरतें ज़्यादा हैं, हाथी तो बस एक है चिड़ियाघर में। ये पहली हकीकत पसंद लड़की थी जिसने सबके मुंह बंद कर दिए। फिर राहिला आपा ने उनके घर के चक्कर लगाने शुरू किए। आखिर शादी की तारीख तय हो गई। उन्होंने उसके सर पर लाल दुपट्टा डाला, मिठाई मंगाई, सबका मुंह मीठा किया और चली गईं। अब रिश्तेदार, लड़कियां, मोहल्ले की सहेलियां जिसे देखो मुंह उठाए चली आती। मुबारक हो मोटो, अरे हमें भी तो वजीफ़ा बता दे जो लड़के वालों पर तूने पढ़कर फूका था। कौन सा जादू कर दिया नंद पर? रेशा ख़त्मी हो रही थी, कुछ हमें भी तो बता। उसकी दोस्त पारो ने इस जोर की चुटकी ली कि बाजू लाल हो गया। वो तकलीफ से तकरीबन उछल पड़ी। कोई और लड़की होती तो वाकई गज भर उछल जाती। वो इंच भर भी खिसक ही सकी। चल मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कौन सा अमल किया था? सायरा बोली। हाँ भाई, अब तो जिया ना जाए, कुछ किया ना जाए, सास बिन रहा ना जाए। पारो गाने के साथ डांस भी करने लगी। सायरा ताली बजाने लगी, सास बिन के उन बिन। सायरा ने पारो के बाजू पे चुटकी भरी।
पारो उस पर पल पड़ी। कमीनी किस जोर से नोचा है मेरा बाजू, मोटू जैसा समझ लिया था क्या कि पता ही ना चले। उसे जोर का गुस्सा आ गया। लो जी, उसकी जान तो जैसे है ही नहीं। जब तक शादी ना हो गई उसकी शामत आती रही। बच्चे तक इशारे कर कर के मुस्कुराते। शादी से एक दिन पहले ही भाभी ने पूरी गली में रंगीन झंडियां लगवा दी थी। घर के दरवाजे पर ट्यूबलाइट लगा दी। क्योंकि शादी तो दिन की थी, लाइटिंग की ज़रूरत ना थी। वैसे तो शादी से महीना भर पहले से लोग दूर तक लाइटें लगवाकर दौलत और शौकत का मुजाहरा करते हैं, मगर उसके भाइयों के पास दौलत ना थी, मेहनत की कमाई थी। शादी पर बहुत मेहमान आए, मोहल्ले भर के, फिर अजीज रिश्तेदार, भाइयों की ससुरालें, उनके अहबाब। मर्दों का तो गली में बैठने का इंतजाम था। बच्चों ने एक आफत मचा रखी थी। इस कदर शोर के सर फटा जा रहा था। भाग दौड़, चीखे, हंसना रोना। बारात तो गांव से आई थी, बहुत मुख्तसर। दूल्हा के बहन बहनोई, उनके बच्चे और दूल्हा की माँ। बारात भाभी के मैके से सज कर आई। सारे बाराती बड़ी भाभी के रिश्तेदार थे। साथ वाले घर से टेलीफोन लाइन ले ली थी। ड्राइंग रूम में फोन मेज पर रखे चारों भाई सर जोड़े बैठे थे। दुबई से फोन का इंतजार था। सामने चौकी पर काजी इमदाद साहब चाको चौबंद बैठे फोन को तके जा रहे थे। जब मुकर्ररा वक्त गुजर गया तो बड़े भाई का माथा पसीने में भीगने लगा। मंझले ने कुर्सी पर बैठे बैठे 2-3 बार पहलू बदला। तीसरा उठकर टहलने लगा। छोटे को ज्यादा फिक्र ना थी। वो मेज का तबला बजा बजा कर गाने लगा। वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़ियानी। फोन की घंटी बजी। बड़े और मंझले के हाथ एक साथ बढ़े। फिर बड़े ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो। वो इतने में ही हाँफने लगे। ओहो भाई, अच्छा देखें, प्लीज़ आप 5 मिनट के बाद फ़ोन कर लें, हमारी ज़रूरी कॉल आने वाली है दुबई से। जी अच्छा। दिलदार साहब आइए, आपकी कॉल है। दिलदार साहब वो पड़ोसी थे जिनका ये टेलीफोन सेट था। वो लपकते हुए आए और रिसीवर कान से लगा लिया। अच्छा ऐसा करो तनवीर कि तुम जनरल अस्पताल चले जाओ। हाँ ठीक समझे। सारी तफसील वहीं। ना जाने वो क्या बातें करते रहे। बड़े भाई सर ऊंचा किए दिलदार साहब को घूर रहे थे। मंझले को झंझलाहट हो रही थी। वो होंठ कुचलने लगा। तीसरे ने दिलदार साहब के कान में कहा, दिलदार साहब वो दुबई की कॉल। दिलदार साहब ने रिसीवर पर हाथ रखकर कहा, बाहर से कॉल आएगी तो ये लाइन कट जाएगी, फिक्र ना करें। कितने जाहिल लोग हो तुम। शायद दिल में उन्होंने यही कहा होगा। बारे उनकी बातें खत्म हुई। सबने सुख का सांस लिया। फिर इंतजार के तकलीफ दे लम्हात शुरू हो गए। आखिर 10 मिनट बाद घंटी बजी। अब दुबई की असल कॉल थी। सब भाइयों और काजी साहब के सर एक दूसरे से मिल गए। वो एक साथ रिसीवर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जीत काजी साहब की हुई। अंदर घर में, बाहर गली में शोर मच गया। निकाह हो गया है, निकाह हो रहा है। मुबारक मुबारक मुबारक। निकाह के बाद दूल्हा ने बड़े भाई से तफसीली बात की और तवक्को जाहिर की कि उसकी छुट्टी की दरख्वास्त पर गौर हो रहा है। उम्मीद है कि 6 हफ्ते बाद छुट्टी मंजूर हो जाएगी। आनन फानन ये खबर भी मेहमानों में पहुंच गई। बेचारी मोटो 6 हफ्ते दूल्हा के बगैर गुजारेगी। किसी ने कहा, 6 हफ्ते बाद तो रुखसती की क्या जल्दी थी, दूल्हा आता तभी रुखसती होती। अरे शन्नो, मत मारी गई है तेरी। बड़ी भाभी की एक रिश्तेदार खातून मोतरस हुई। क्या 6 हफ्ते ससुराल में रहेगी ये, और यहाँ का कामकाज कौन करेगा। हाय बेचारी, ससुराल में एक एक दिन गिन गिन कर गुजारेगी।
फिक्र से दुबली हो जाएगी। सबको उसकी फिक्र थी, मगर वो जरा भी फिक्रमंद थी ना परेशान। ससुराल तो जाना ही होता है। दूल्हा जब भी आए अच्छा है कि उसके आने से पहले वो ससुराल में अपनी जगह बना लेगी। जहेज मुख्तसर था। सास ने कुछ नागवारी का इजहार किया। बड़े भाई ने बड़ी रकम फर्नीचर के नाम से उनके हवाले की। मंजले ने डिनर सेट के लिए माकूल रकम इनायत की। फिर चारों ने बहनोई को सलामी उन्हें दी। तब सास साहिबा का मूड दुरुस्त हुआ। हिचकोले खाती हुई सुजुकी जब गांव पहुंची तो शाम हो चली थी। अंधेरा फैल चुका था। गांव की गलियां सुनसान थीं। थकी हारी रूहाना नंद की बेटी के सोए हुए वजूद को संभाले बैठी थी। उसके घुटने जवाब दे चुके थे और वो सख्त बेजार थी। गली सुनसान थी। घर में भी कोई रौनक ना थी। दो बूढ़ियां बैठी गपशप कर रही थीं। वो सास साहिबा को मुबारकबाद देने लगी। बड़ी आपा ने दुल्हन थकी हुई है कहकर उनके जोशो खरोश को ठंडा कर दिया और उसको लेकर कमरे में पहुंच गईं। ये शहरयार का कमरा है, आज से ये तुम्हारा है, तुम आराम करो। उसकी कमर तख्ता हो रही थी। वो इजाज़त लिए बगैर धड़ से बेड पर गिरी यानी लेटी तो नंद को हंसी आ गई। उनके दोनों बच्चे आ गए तो उन्होंने कहा, चलो बेटा दुल्हन को आराम करने दो, वो थकी हुई है। अब तुम उनसे कल बातें करना। ये थकी हुई क्यों है? अब तुम उनसे कल बातें करना। ये थकी हुई क्यों है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। सफ़र करके आई है ना बेटा? तो हम भी सफ़र करके आए हैं, हम तो नहीं थके। बेटा दुल्हन थक जाती है। अम्मा इतनी मोटी दुल्हन भी थक सकती है? बच्ची ने हैरत से कहा। उसकी माँ ने फौरन बेटी को डांटा। ये क्या बदतमीज़ी है? खबरदार जो आइंदा मोटी कहा। बदतमीज़ी की बात है। बड़ी हैं तुमसे, मामी हैं, सुना? उस वक्त ये बड़ी नंद उसे बहुत प्यारी लगी, जो भाभी की मोमानी थी। उसकी नंद थी। अरे आज तक किसी भाभी की तौफीक न हुई कि बच्चों को इस बदतमीज़ी पर मना करती। खाना खाकर ऐसी सोई कि होश न रहा। नींद हमेशा उसकी कमज़ोरी रही। सुबह आँख खुली तो अजनबियत का एहसास शदीद था। कमरा बिल्कुल सादा था। किसी तरह भी उरूसीपन ना था, ना फूल पत्ते ना चमक। सादा सी फूलदार चादर पलंग पर थी। एक खिड़की सहन में खुलती थी, दूसरी खेत की जानिब। खिड़की खुलते ही हवा का खुशगवार झोंका चेहरे से टकराया। बाहर खेत थे, हरियाली थी और चिड़ियों की चहकार। चहकार भी इस गजब की हर समत शोर सा बपा था। उसी शोर से उसकी आंख खुली थी। खिड़की में सलाखें भी थी, जाली भी थी। दूर कोई किसान हल बैल लिए टक टक करता जा रहा था। बैलों के सर पर कौवे बैठे थे। बड़ा दिलचस्प सीन था। उसे हंसी आ गई। काश बैल कुछ नज़दीक होते और वो उनकी तस्वीर उतारती। गो के कैमरा उसके पास था, मगर उसमें फिल्म ना थी। खैर यहाँ रहकर ऐसे सीन फिर भी देखे जा सकते हैं। गांव देखने का उसका ये पहला इत्तेफाक था। खेतों की हरियाली और खनक हवा, चिड़ियों की झनकार, सब कुछ अच्छा लग रहा था। सहन की खिड़की से दुला हुआ आंगन नजर आया। सामने बड़ी आपा किसी काम में मसरूफ थी। हालांकि अभी बहुत सवेरा था, मगर बड़ी आपा ने आंगन धो लिया था और नाश्ता बना रही थीं। यहाँ सुबह बहुत जल्द होती है, हर काम सवेरे सवेरे निमट जाता है। वो अंदर आई और रूहाना को जागता पाया तो उसे बताने लगी। यहाँ से करीब ही वो कस्बा है जहाँ मैं रहती हूँ। वहीं के स्कूल में मेरे मियाँ पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें वक्त से पहले जाना पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत सवेरे उठना पड़ता है। उसके पास बैठकर वो तफसील बताने लगी कि वो अपनी अम्मा की तन्हाई की वजह से यहाँ रहती है, वरना उनका घर तो कस्बे में है।
بھائی کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو گئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے خود کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہیں آ کر رہنا پڑا۔ ان کے میاں شام کو سوزوکی لے کر پھر قصبے چلے جاتے ہیں۔ وہ سوزوکی کرائے پر چلاتے ہیں اور اب اماں کی تنہائی کی وجہ سے انہیں مجبوراً رہنا پڑ رہا ہے۔ میاں کو خاصی زحمت ہے تو یہی صورت نظر آئی کہ ایک بہو لے آئیں جو ساس اور گھر کو سنبھالے۔ اسی عجلت کی وجہ سے تو فون پر نکاح ہوا۔ آپا، آپ لوگ بارات میں بہت کم آدمی لے کر آئے تھے، وہاں سب باتیں کر رہے تھے کہ کوئی رشتہ دار ہی نہیں، بس بڑی بھابھی کے ہی رشتہ دار تھے، کیا گاؤں سے بھی کوئی نہیں گیا؟ بڑی آپا نے بتایا کہ گاؤں میں ان کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، یہ لوگ شہر ہی کے رہنے والے تھے۔ ابا جی کی دوستی یہاں کے زمیندار سے تھی، زمیندار نے ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں بلوا لیا، با اصرار یہیں رکنے اور رہنے پر مجبور کیا۔ زمین بھی عذرا عنایت سونپ دی، پھر ابا نے گھر بنا لیا تو بس پھر یہیں رہ گئے۔ رشتہ دار سب بڑے شہروں میں ہیں، بلایا تو سب کو تھا مگر اپنی اپنی مجبوریاں، کوئی بارات میں نہ آ سکا دو چار کے سوا۔ ناشتہ کر کے بڑی آپا کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی، وہ پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی منجلی نند آ گئی۔ اس کے بچوں نے آتے ہی وہ ادھم مچایا کہ حد نہیں۔ وہ سونے کی اداکاری کر کے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، بچے باہر چلے گئے۔ پھر چھوٹی نند کا غلغلہ ہوا، دونوں ماں کے کمرے میں گھسی، اس کا جہیز دیکھنے لگیں۔ پھر اس کے کمرے میں آئی، اس نے اٹھ کر بڑے تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں مہو حیرت اسے تکتی رہیں سر سے پیر تک۔ ان کے چہرے نئی بھاوج نامنظور کی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ بڑی بے دلی سے وہ خالی دیواریں گھورتی رہیں، پھر باہر چلی گئیں۔ صحن میں جا کر بڑی آپا کا گھیراؤ شروع ہوا، اس کے موٹاپے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ سب سن رہی تھی۔ وہ لوگ چاہتی تو کچن میں یا دوسرے کسی کمرے میں جا کر آزادانہ رائے کا اظہار کر سکتی تھی تاکہ وہ نہ سنے، مگر انہیں اس کی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے جی بھر کر بھڑاس نکالی، پھر اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ وہاں شاید اماں سے بحث ہو رہی تھی۔ روحانہ دل گرفتہ اور رنجور سی بیٹھی رہی۔ کھڑکی سے آتی کھیتوں کی نم ہوا، ایک عجیب سی مہک، کسانوں کی ٹخ ٹخ، آسمان پر اڑتی چیلوں کے جلوس، شیشم کے درخت پر کووں کی بارات، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھیت کی سمت والی کھڑکی بند کر دی۔ پھر گاؤں کی عورتیں آنگن میں جمع ہونے لگیں، جہاں 4-5 پلنگوں پر آپا نے بستر بچھا دیے تھے۔ سب انہی پر براجمان ہو گئی۔ آپا نے لسی سے تواضع کی، پھر آپا اندر آئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کا میک اپ کیا، سرخ دوپٹے سے سر ڈھانپ کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا، سرگوشی میں کوئی ہدایت دی جو وہ سن نہ سکی، پھر عورتوں کو اندر بلایا۔ سب بھرا مار کر اندر آئیں، کسی نے سرسری، کسی نے بغور جائزہ لیا، تھوڑی اونچی کر کے گلے کے زیورات کو جانچا، تفصیل معمول کی اور پھر باہر چلی گئیں۔ جو اندر بیٹھی تھیں وہ بھی چپ چاپ اسے گھورتی رہیں۔ بڑی آپا نے شہریار کے آنے پر دعوت ولیمہ کا اعلان کیا، سب کو دعوت دے دی۔ اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی اور ہر سمت سناٹا چھا گیا۔ چندا کے بچے بھی پڑوس میں کھیلنے چلے گئے۔ وہ اٹھ کر باہر آئی، پھر کچن میں چلی آئی۔ بڑی آپا اسے ڈانٹنے لگیں۔ بڑی آپا، مجھے کوئی کام بتا دیں، میں اکیلی بیٹھ کر تنگ آ گئی ہوں۔ تم ابھی نئی دلہن ہو، رات بھر کی بیاہی، ابھی تمہیں کسی کام کی نہیں، آرام کی ضرورت ہے۔ مگر میں کروں کیا؟ کچھ نہیں، چلو کمرے میں، کوئی دیکھے تو کیا کہے کہ رات کی دلہن کام سے لگا دی گئی۔ چندا تارا گاؤں میں اپنی سکھیوں سہیلیوں سے ملنے گئی ہوئی تھیں، پھر آئیں تو ان کے بچے بھی آ گئے۔ تینوں کے شوہروں کے آنے پر دسترخوان بچھایا گیا، خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا، پھر سب کمروں میں آرام کرنے چلی گئیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی، کاش وہ بھی آ جاتے۔
उसने सोचा तीनों नंदों के शौहर तो मौजूद हैं, हालांकि पुराने हैं मगर नए दूल्हे का पता नहीं। दुल्हन बेचारी अकेली की अकेली। बच्चे उसके साथ कमरे में आ गए। सारी दोपहर उसके कान खाते रहे, ऊंट पटांग बातें करते रहे। शाम तक किसी बड़े ने आकर झांका तक नहीं। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आने लगा। नई दुल्हन के साथ ऐसा करता है कोई? बड़ी आपा आई तो अपनी मसरूफियत का जिक्र करने लगी, फिर पूछा कि वो सोई भी थी कि नहीं। बच्चों ने खुद ही बता दिया कि हम तो मामी से कहानी सुनते रहे। उन्होंने सबको निकालकर कमरा बंद किया और उसे सोने की ताकीद करके बाहर चली गईं। अब रात के खाने की तैयारी करनी थी। शाम को दोनों छोटी बहनें सहन में शौहरों के साथ चहलकदमी करने लगी। उनकी बातों और हंसी की आवाज़ से वो जाग गई। खिड़की खोलकर देखा, दोनों नंदोई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। आपा बेचारी अकेली किचन में मसरूफ थी। उसे अफसोस हो रहा था, काश वो उनकी कोई मदद ही कर सकती, मगर सहन से गुजरना पड़ता जहां वो दोनों ख़वातीन अपने शौहरों के साथ दिल लगी और नाजो अंदाज में मसरूफ थीं। अव्वल दिन दोनों की राय अपने बारे में सुनने के बाद उसे उनसे चिढ़ सी हो गई थी। भाई, हमने तो दुल्हन को देखा ही नहीं, एक नंदोई गोया हुए। क्यों, खाने के वक्त आंखें बंद कर ली थी क्या? तारा खासी तेज सी थी। नहीं, मगर वो घूंघट में मुंह छुपाए बच्चों के झुरमट में इस तरह बैठी थी कि नहीं देख सके। वाह, इतनी भी छोटी नहीं है कि बच्चों में छुप जाएं। माशाल्लाह खासा ऊंचा कद काठ है और खासी। तारा हंसकर चुप हो गई, जुमला पूरा ना कर सकी। क्या अभी मुंह दिखाई हो सकती है? नहीं, सुबह देख लेना, चंदा ने मिनमिना कर कहा। क्यों, सो गई है क्या? सोई नहीं, अभी खिड़की से झांक रही थी। तारा खिलखिलाई। रात का खाना अम्मा के कमरे में खाया गया। रूहाना ने भूख ना होने का बहाना कर दिया, इस तरह नंदोई उसे ना देख सके। राहिला आपा की बेटी हिना स्कूल का काम कर रही थी, उसने भी खाना नहीं खाया। दोनों ने साथ खा लिया। बाद में हिना उसके साथ ही सो गई। सुबह सुहानी थी, बड़ी अच्छी नींद आई थी उसे। बड़ी आपा ने उसे और हिना को जगाया, नमाज की ताकीद की और फिर बाहर आने की हिदायत की। चंदा तारा के शौहर अपने घर जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने काम पर जाना था। सुबह लोग नाश्ता कर रहे थे जब रूहाना हिना और बड़ी आपा के साथ कमरे में पहुंची। कमरा मर्दाना आवाज़ों, बुलंद कहकों से गूंज रहा था। सुबह सवेरे ये रौनक उसे अच्छी लगी और दिल में होक सी उठी कि काश शहरियार की आवाज़ भी उन आवाज़ों में शामिल होती। उसे आता देखकर तीनों खड़े हो गए। उसने सलाम किया, उन्होंने सलामी दी। बड़ी आपा ने तकल्लुफन कहा, ओहो क्या जल्दी है, वलीमे पर दे देते, दूल्हा तो आ जाता। दूल्हा के आने के बाद क्या शक्ल तब्दील हो जाती? तारा ने कहा, मेरा मतलब है कि सलामी तो दूल्हा की मौजूदगी में ही अच्छी लगती। दुल्हन अच्छी लगे ना लगे, सलामी ज़रूर अच्छी लगे, आवाज़ दबाकर कहा उसने, मगर सुन लिया। नंदोई जाने लगे। जाते जाते एक ने, पता नहीं तारा का था कि चंदा का, मुड़कर उसे मुखातिब किया। ज़्यादा फिक्र ना करें भाभी जान, अगर आपकी छोटी नंदें 4 दिन भी यहाँ रह गईं तो आपको वज़न कम करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो सब बाहर चले गए। बाहर से भी कहकों और खनकती हंसी की आवाज़ें आती रहीं। शायद सब उसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो अजीब सी कोफ्त में घिर गई। अगर वो होते तो किसी की मजाल थी कि उसका मजाक उड़ाया जाए, नागवारी का इजहार किया जाए। वो गुमसुम बैठी थी जब आपा सबको रुखसत करके आईं। उसे वहीं बैठा देखकर बोली, अरे तुमने तो अभी लिबास भी तब्दील नहीं किया। अम्मा उठ जाएं तो उनको सलाम करने जाना है, फिर सब मिलकर नाश्ता करेंगे, ठीक है? आपा में दिल मोह लेने की सलाहियत थी। उनके तबस्सुम में खुलूस था, कशिश थी। लाख मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, उनका मुस्कुराता वजूद सब भुलाने पर मजबूर कर देता था।
आपा ने खुद उसके कपड़े निकाले, हल्का फुल्का मेकअप किया और रोज़ तैयार होने का हुक्म भी सुनाया। देखो, ठीक है कि हमारा भाई यहाँ नहीं है, मगर बहरहाल तुम नई दुल्हन हो, इस घर की बहू हो। बेशक हम गांव में रहते हैं, मगर मिजाज हमारा शहर वालों जैसा ही है। खमीर तो वही है ना। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम रोज़ बन सवर कर कमरे से निकलो। गांव वाले भी कहने पर मजबूर हो जाएं कि भाई वाह, कैसी सोहनी वोटी है। वो शर्मा गई। मैं सोहनी तो नहीं, इतनी मोटी हूँ। पता नहीं आपने क्या देखा। मैंने जो देखा वो सब पर जाहिर हो जाएगा एक दिन। सब पर? और क्या मैं जानती नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं खुद से नावाकिफ़ हूँ? यकीनन ऐसा भी होता है। आदमी खुद अपने आप से वाकिफ़ नहीं होता अक्सर। वो हैरत से उन्हें देखती रही। अजीब बात करती हैं बड़ी आपा, और किस खूबसूरती से उसके सवाल को हजम कर गईं कि उन्होंने उसमें क्या देखा। चंदा और तारा क्यों चली गईं? रह लेती चंद दिन। उसने अपनायत जताई। वो तो रहने ही आई थी, मगर फिर ये सुनकर कि शहरियार 6 हफ्ते बाद आ रहे हैं, चली गईं ताकि शहरियार की मौजूदगी में रहें। बड़ी आपा बहुत हमदर्द, दर्दमंद और खुलूस हस्ती थी, और पुरखुलूस हस्ती थी। मियाँ और बच्चे भी नेक सरशस्त थे। उसने बड़ी आपा से बहुत कुछ सीखने का तहैया कर लिया। 1 महीना तो ऐसे गुजरा जैसे हवा में उड़ गया। एक दिन आपा ने कहा, मैं चंद दिन के लिए जा रही हूँ। ससुराल में एक अजीज़ बीमार हैं, मेरा जाना ज़रूरी है। घर का काम सब कर लोगी? अम्मा को खाना वक्त पर, दवा देना, ये सब भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो दिल में डरी, मगर हिम्मत करके कह दिया, मैं सब कर लूँगी, आप ज़रूर जाएं। अव्वल तो कोशिश करूँगी कि कल ही आ जाऊँ, लेकिन रुकना पड़ा तो तुम ऐसा करो कि, बल्कि मैं खुद रहमत बुआ से कह जाऊंगी, वो अपनी बेटी के साथ आकर रात को रह जाएंगी। उनका बेटा डेवड़ी में सो जाया करेगा, डरना नहीं। आपा बहुत हसास और ज़िम्मेदार थीं। रहमत बुआ अम्मा के कमरे में, उनकी बेटी रूहाना के कमरे में। बेटा डेवड़ी में सोया। लड़की बड़ी बातूनी थी, आधी रात तक बातें करती रही। सवालात, वजाहतें, ख्वाहिशात। उसे शहर देखने का अरमान था। जाने कितनी देर में नींद आई कि सुबह फजर के वक्त आंख ना खुली, बल्कि एक बेहंगम शोर ने जगा दिया। गौर किया तो ये उसकी सास थी, जो वक्त पर नाश्ता ना मिलने पर वावेला कर रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी। याद आ गया कि बड़ी आपा मौजूद नहीं और नाश्ता उसे बनाना है, बल्कि सभी कुछ करना है। जल्दी से उठकर सास की खिदमत में हाजिर हुई। जल्द से जल्द नाश्ता बनाकर लाने की यकीन दहानी कराई। नाश्ता देर से मिलने पर मिजाज नासाज था। कोताही की माफ़ी मांगकर फुर्ती से किचन में घुस गई। झटपट तैयार किया, लाकर पेश किया। जब तक वो खाती पीती रही, सामने बैठी रही। मुंह बना बना कर खा रही थी। अंडा सख्त है, चाय कड़वी है, पराठा कच्चा है। खाली बर्तन उसके सामने पट गए। ये ऐतराज़ खाने के बाद हुए। उसने कहा, आइंदा ऐसा ना होगा। दोपहर और रात के खाने के लिए दरियाफ्त किया तो फरमाया, जो जी चाहे पका लो। वो परेशान हो गई। भाई साहब रोज़ सौदा लाकर दे जाते थे, कभी कस्बे से इकट्ठी सब्जी वगैरह भी ले आते थे, मगर अब घर में गोश्त था ना मुर्गी, सब्जी थी ना कोई ऐसी चीज़। ताजुब है कि आपा इस मामले में क्यों गाफिल हो गईं।